social media is playing the big role because they are glamorizing certain careers. I'll give you an example of, after the Shark Tank started, and then everybody wants to be entrepreneur. What is after 12th standard? So I think somewhere we have to balance profit with the passion. और आजकल तो 1000 से ज़्यादा करियर है जो ट्रेंडिंग में है, जो अलग अलग है, जो हमें पता भी नहीं होते. तो मुझे लगता है लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. I'll tell you the story of one of my student. Student needs to select कि रिसर्च ओरिएंटेड पार्ट में हो जाना चाहिए कि इंडस्ट्री एप्लीकेशन पार्ट में हो जाना चाहिए. इंडिया में क्या है, मतलब put on your horse landers 10, 12 bachelor's master's work. ट्यूशन फीस और जॉब अपॉर्चुनिटीज में कनेक्शन नहीं होता है. ट्यूशन फीस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कनेक्शन होता है. स्कॉलरशिप कितनी बट रही है पूछो मत. Being an adult can be very confusing. आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सी कंट्री में करना है, क्या चीजें जो आज ट्रेंड में हैं वो कल ट्रेंड में रहेंगी या नहीं रहेंगी, आपको अपने करियर में कैसे कैसे ट्रांजिशंस करने पड़ सकते हैं. इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे हम आज इन द एपिसोड ऑफ बियॉन्ड बॉर्डर्स विद हादा. और आज के एपिसोड में मेरी जो गेस्ट हैं उन्होंने अपने करियर के अंदर ऐसे ट्रांजिशंस किए हैं और वो स्टूडेंट्स को भी हेल्प करती हैं in figuring out how to sort their life out. So today we have Dr. Padmaja with us. She is an assistant professor, a career and holistic development coach, and the founder of Vyapta International Study Advisor. So welcome, ma'am. Welcome to the show. Thank you so much, sir, for inviting me on your show. And I'm glad to be here. Always happy to have people who have had a variety of experience. I did get a chance to go through your LinkedIn profile and I could see the variety in that, and we'll get into that as we go ahead with the episode. तो सबसे पहली चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, which is being confused about careers and choices is a part of your life, my life, I believe everyone's Right. life. But हम लोग की उम्र तक आते आते हम लोगों को थोड़ा सा उसको हैंडल करना आ जाता है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है. Right. And based upon that experience, how do you think student can use this confusion to their advantage? Very nice question, sir, to start with. So I'll share my journey a little bit. Sure. So that I can relate, what you're saying. So after post-graduation, actually when I was doing my post-graduation, I started working as a school teacher initially. And I love teaching. I thought this is my calling and I want to pursue it further. And then I remember, visiting college professors and, asking them to figure out like, what is next for me? And that's how, I completed my PhD, I completed set examination, and I got a job as an assistant professor in the college. So, लगभग 15 years के लिए, more than 15 years, I worked as an assistant professor. Oh, so you have been a college professor for 15. So where did you become a professor first? It was in the year 2001. 2001. Yes. Long time Yes, ago. it is a long time ago. So while performing my duties, there is one more passion that I found, and that is interacting with the kids. तो ऐसे होता था कि बच्चे आ रहे हैं, हर चीज के लिए आ रहे हैं, एकेडमिक्स के लिए आ रहे हैं, उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए आ रहे हैं. I was guiding them for different college events. तो एक, I started feeling passionate about, again helping the students, right? But after 15 years, again I got stuck. So I just thought, let's explore the corporate world as well. Then little bit of hard work for 1 year. I did some certifications and internships and got into MNC. I worked at E&Y as a credit analysis for over the year. And so that's thing, I have done. And so this credit analysis thing, this was related to the topics that you were teaching, the PhD that you Yeah, had? I was actually teaching undergraduate students, commerce students and MBA students. So for MBA, I taught finance, banking, subjects like that. And for undergraduate, I taught accounts related subject, costing, financial management, management accounting. So, so I was pretty aware of all the theoretical part. So that's how then I got into EY. But then I realized something very crucial, that
this is not what I truly wanted. So then that is the point, I had to think now what to do, But that pull towards guiding the students, shaping their careers, or discussing things with them, that's how my confusion, turned into clarity. And then I founded this career counseling firm that is Vapta International Study Advisor. So whatever I learned in my journey, because it is not a small journey, it's been a journey of around, 15 to 20 years. So in the journey, whatever step, misstep were there, और जो मेरा टीचिंग है, मेंटोरिंग है, थोड़ा सा वो कॉर्पोरेट वाला स्टिंट है, तो whatever knowledge is there, so I put into this now. So that is how my confusion turned into clarity. So I think confusion isn't a barrier, that gives you opportunity to explore. So the same thing I would tell the students, that you explore, rediscover, and align everything with your passion. That's how it goes. So here I will give you a few instances, like during the journey of being career coach. Now I met many students, and they come with the confusion at different grades. Say for example, 8th standard वाला Ved मेरे पास आता है, and वो he's good at football, he's good at academics, okay, he's good at almost everything. So football is his passion, but now he's confused because he thinks कि अगर मैं फुटबॉल पे फोकस करता हूँ तो वेदर इट इज स्टेबल और करियर फाइनेंशियली वायबल होगा, और अगर फुटबॉल पे फोकस करता हूँ तो एकेडमिक छूट जाएगा. सेम थिंग विद 10th स्टैंडर्ड रीटा, लाइक शी इज गॉट 95% एंड मोर इन CBSE. नाउ फैमिली प्रेशर है कि चलो मेडिसिन परस्यू करो, बट शी इज नॉट श्योर बिकॉज शी लाइक्स मैथ्स, राइट? सो नाउ शी इज कंफ्यूज कि इतना जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है मेडिसिन में, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. हाँ, मतलब मेडिसिन के अंदर तो आई थिंक 30 तक आते आते तो आपका करियर चालू होता Not है. everybody is ready for that kind of commitment. And then I see engineering student like Priya, like last week she came, and she's a CS graduate, and she's stuck, she's lost because she doesn't know which industry to enter. There are so many options out there, whether she should go for study abroad or whether she should go for job opportunities ahead, and how to write a resume, what skills she required. So I think every stage, every milestone, there are confusion, and somewhere we have to work out like how this confusion you can turn into clarity. तो मैम अब आप कुछ टिप्स दे पाएंगी क्या स्टूडेंट्स को कि ये चीजें आप कुछ कर सकते हो? देखिए, क्लियर कट आंसर निकालना तो हर स्टूडेंट को अपने लिए करना पड़ेगा, बट एनी टिप्स, एनी सजेशंस यू कैन गिव टू स्टूडेंट्स कि यार इन चीजों का ध्यान रखो, इन चीजों पे इवैल्यूएट करो, समथिंग लाइक दैट. So see, first thing I would say that self-awareness is very important. So what do I mean by self-awareness? Is your own awareness. What are your strengths, likes, dislikes, interests? What is your passion? What are your values? So that is one thing. And how to do it. So self-assessment is required, and for that, I would say go to a expert counselor, those who can do it, and talk to them because they will give you some different perspectives. So this is the one thing. Secondly, I would say do your research, explore the opportunities, as per the taste, whatever results are there. So again, this is one thing. Again, third thing, I would say go to the expert in that related field and get more insights. What are the current scenarios? What is currently trending in the market? So when you get so many different perspectives, along with that, I would also suggest do some volunteer work, do some internships, or work on some projects under some IITian professor or somebody who is starting a startup. So that will again give you another perspective. So don't be shy away from this thing, though it will look overwhelming that it is too much to do, but it will definitely give you some insight at each and every effort of yours. So, and that is the time then you will learn about yourself. So it is not just the career counseling, but there are so many initiatives they have to take. And I would say parental support is must, because it is a decision of life for every student. तो पेरेंट का सपोर्ट तो होना ही चाहिए. बिल्कुल. और नहीं मैम, मतलब एकदम इसी गोल के साथ में हम लोगों ने ये बियॉन्ड बॉर्डर्स विद हांडा की सीरीज चालू की है कि इतनी सारी चीजें, इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं. Correct. अगर किसी स्टूडेंट को हम लोग
थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी ला पाए, तो देन आई वुड अज्यूम कि जो मेरी मेहनत है इन सब एपिसोड्स के अंदर वो शायद प्लान I'm so glad you're doing this because definitely it will give them a different perspective to look at, career True. thing. Yeah. ट्रू। और मैम करियर की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को रहता है, स्पेशली जो 12th के बाद में कुछ जो चूज करना चाह रहे हैं, वो ये रहता है यार कि मैं कौन सी लाइन पकड़ूं, हाउ डू आई डिसाइड दैट दिस इज द करियर पाथ दैट आई वांट टू परस्यू। क्योंकि आप सोचिए 12वीं के बच्चे को कितना तो पता है, टू बी रियली ऑनेस्ट। मतलब मैं तो बहुत सारे MBA स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, तो वो तो जब ग्रेजुएट करने के बाद में 2 साल काम करने के बाद में तब उनको जाके समझ में आता था नहीं यार ये जो इन्फोसिस में मैं काम कर रहा हूँ इसमें मेरे को मजा नहीं आ रहा है। तो 12th के टाइम पे तो ये और भी डिफिकल्ट रहेगा। सो हाउ कैन अ स्टूडेंट फिगर आउट कि यार मेरे को ये करियर पकड़ना चाहिए या वो करियर पकड़ना चाहिए, वो कैसे डिफाइन आपने बात को बराबर पकड़ा है बिकॉज अभी अगर हम देखते हैं आउट देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर स्टूडेंट वेदर इट इज 10th standard or 12th standard. There is a parental pressure, there is a peer pressure, and in the social media is playing the big role because they are glamorizing certain careers. I'll give you an example of, after the Shark Tank started, and then everybody wants to be entrepreneur. So after I think, podcast Ranveer, then everybody wants to be the YouTuber. And these kind of glamorizing careers, now they feel these are the, things that they need to do. तो अभी मेरे ये सब दिखता है, मैं आपको मेरे पास स्टूडेंट आ रहे हैं, so when I asked them about their interest, so they asked that नहीं मुझे यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, या फिर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, एंड आई फील प्लीज dig deeper. मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब मेरे को कितने लोग आके बोलते हैं, तो मेरी ऐसी कोई बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, मैं कोई बहुत बड़ा पॉडकास्टर नहीं हूँ, बट I'll say even if you call me average or below average, as an average YouTuber, as an average podcaster, मैं महीने का सिर्फ 15-20 हज़ार रुपया कमा पाता हूँ। और वो तब है जब मैं 40 साल का हो गया हूँ, मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, मेरी सर्टेन क्रेडिबिलिटी मैंने बनाई है, तो इसमें करियर बिल्कुल बनता है। बट इन फील्ड्स में करियर जो बनता है वो एकदम टॉप पे जाके बनता है। तो जैसे पुरानी पिक्चरों में लोग देखते नहीं थे कि एक वो स्ट्रगलिंग आदमी है, वो बम्बई चला गया, मैं बम्बई जाके हीरो बनूंगा, और सबको शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार नजर आता है। तो आज की डेट में वो ये पॉडकास्टिंग और यूट्यूबर है, सबको जो लोग एकदम सक्सेसफुल पर जानते नहीं, बात से एक ही होता है, और स्टार ऑफ द मिलेनियम भी एक ही होता है। तब भी बता रहा हूँ, इट इज एक्सट्रीमली, आज की डेट में एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बनना एक डॉक्टर बनने से, एक IAS IPS बनने से, एक IITian बनने से बहुत ज्यादा मुश्किल है। इन सब चीजों में सक्सेस रेट ऐसा नहीं होते, बट बहुत कम लोग होते हैं जो कि इसमें। So that's the thing, sir. So what is happening here that they have to understand what challenges are there, what kind of effort they have to put, and how long it is going to take them to be successful in that particular career. And that's why I always say whatever is glamorizing right now, whatever is trending, so you first check it, like whether it is aligning with your passion. जैसे आपने अभी question पूछा, what is after 12th standard? So I think somewhere we have to balance profit with the passion. And now how to do it? Earlier I have given few actionable steps to you, like career assessment and those. After that you ask yourself a question, like what excites me most and what skills I have so that I can monetize them. जैसे अभी 12th standard का बच्चा है, हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे उसको साइकोलॉजी पसंद है, उसको इकोनॉमिक्स पसंद है, तो साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स बन के बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में जा सकता है। अगर साइकोलॉजी और फाइनेंस पसंद है तो वो बिहेवियरल फाइनेंस में जा सकता है। दीज आर आल्सो ट्रेंडिंग करियर। अगर मैथ्स और इकोनॉमिक्स पसंद है तो आपको भी पता है मैथ्स और इकोनॉमिक्स लेके आज कितने करियर है जो ट्रेंडिंग में है। सो whatever is your passion, and you see wherever is the profit and how you will align them, how you can balance them. So I think this is the most important thing, that they have to learn. अच्छा मैम, इस सब के अंदर studying abroad, where does that fit into it? Yeah, so let's extend this discussion. Like as I said, now मैंने subject तो select कर लिया, मुझे course select करना है। course select करने के बाद I have to see which college shall I apply.
तो डेफिनेटली फॉर अंडर ग्रेजुएट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो प्रिपेयर कि नहीं बच्चा इंडिया में रहे, बट ऑफकोर्स दोज हु आर कंफर्टेबल कैन गो अब्रॉड. नाउ व्हाई टू गो अब्रॉड? But for higher education, for master, I would suggest you should study abroad. Now I have my reasons. Common reasons are there. आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलने वाला है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, फॉस्टर्स इंडिपेंडेंस, अडेप्टेबिलिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज है. बट व्हाट आई फील इज अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, the subject selection that you get, interdisciplinary courses are there. And for example, tomorrow if I want to study CS with music, I can do that. So the choices of programs, the choices of subject, the curriculum, the content with world class education. So आपको जो करना है लाइफ में, उसके लिए जो चॉइसेस आपको दी जाती है अब्रॉड एजुकेशन में, तो आई थिंक वो मास्टर लेवल पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है. नहीं मैम, बट वो जो हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ते आए हैं ग्रेजुएशन में, उससे तो फिर वो काफी डिफरेंट क्विक स्विच टाइप का नहीं हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आपको एक एक्सपोजर मिल रहा है, आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बन रहा है. और आजकल तो 1000 से ज्यादा करियर है जो ट्रेंडिंग में है, जो अलग अलग है, जो हमें पता भी नहीं होते. अगर हम एक ही जगह पे वेल में, जैसे हम बोलते हैं ना कूपा मंडू, तो वैसे कोयला अगर मंडल. बन के, हाँ, तो वैसे अगर बन के रह जाए तो बहुत मुश्किल है. मतलब आपको उधर से बाहर निकलना है, तभी चेंजेस आएंगे और आपको जो चाहिए वो अचीव कर सकते हो आप. तो जहाँ तक आपने मैम ये चेंज की बात करी, मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, आप 2001 में प्रोफेसर बने एंड आई थिंक 2015 यू रिमेन्ड इन दैट रोल. करेक्ट. उसके बाद में वेरी सब्सटैंशियल एक्सपीरियंस. टिपिकली व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप एक फील्ड में हैं तो आप उसी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर से, प्रोफेसर से, दैट्स हाउ योर करियर ग्रोज. बट आई नोटिस कि आपने बिफोर यू स्टार्टेड दिस स्टूडेंट थिंग, आप बीच में आपने ENY के अंदर जो स्विच किया था, यू मेंशन दैट. थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ा. एक तो ये कि ये कैसे हुआ, एंड द सेकेंडली कि आपने ये क्यों किया, मतलब उसके पीछे थॉट प्रोसेस और रीजनिंग क्या थी? थॉट प्रोसेस ऐसा था सर कि 15 ईयर्स से मैं बच्चों को गाइड कर रही थी. तो रेज्यूमे राइटिंग है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है, बिकॉज theoretically we had a very strong foundation that time because we were teachers, so definitely. And उनमें उनको मैंने हेल्प किया, एंड देन दे केम विद द सक्सेस स्टोरीज कि मैम हमें तो जॉब मिल गया, ऐसा है वैसा है. देन आफ्टर 15 years I just thought just explore the corporate side of this finance field, कि how it works and everything. तो इसके लिए मैंने 1 साल का ब्रेक लिया. In 6 months I have completed most of the certification that is required. मेरा स्किल अपडेट किया, एंड फॉर नेक्स्ट 6 months आई वर्क इन वन ऑफ द स्टार्टअप जहाँ मैंने इंटर्नशिप किया. तो यू विल नॉट बिलीव दिस, इवन इट इज आई एम PhD होल्डर एंड बीइंग 15 years प्रोफेसर. वो इंटर्नशिप पेड नहीं था, बट just to gain knowledge, how to be in corporate. I had done that, and organically I got into EY, not even through reference. So I just feel from my experience कि I can also share this experience with others, and they will also get motivated and do the same. तो मैम ये आप एक आपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए, फिर उसके बाद में इंटर्नशिप करी, एंड दैट हेल्प यू गेट इनटू EY. अब आपके पास में तो इतनी नॉलेज थी और एक्सपर्टीज था, बट कोई एक स्टूडेंट है करेक्ट who is probably just a graduate, या वो ग्रेजुएशन अभी कर भी रहा है, वो कैसे अपनी प्रोफाइल बना सकता है? क्योंकि आप तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, वो तो बेचारा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है. सो हाउ कैन समवन लाइक दैट बिल्ड हिज It's profile really a from valid scratch? question, sir, and thanks for asking this. See, profile building is very important. It is an integral part for every student. Whether you want to study abroad, whether you want to target one of the company where you want to work. Because आजकल ना कैसे हो रहा है, पहले जैसे नहीं है कि अरे बैंक में जॉब मिल गया. अभी मुझे टारगेट, मैंने अगर HSBC किया है या फिर मैंने डिलॉयट और EY में मुझे चाहिए तो मुझे वहां चाहिए. तो आजकल का जो जेनजी है, सो इट इज डिफरेंट. सो दे हैव दैट टारगेट कंपनी. और इवन स्टडी अब्रॉड के लिए अगर उनको हार्वर्ड जाना है, MIT जाना है, तो दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस इज देयर समवेयर बैक ऑफ द माइंड कि मुझे तो ये करना है. तो व्हाट इज रिक्वायर्ड? सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि आपको किधर कोई कंपनी में आपको जॉब चाहिए, ठीक है. तो यहाँ थॉट प्रोसेस क्या है कि आप स्टार्ट कैसे करें. तो सबसे पहला तो मैं बोलूँगी आपका जो एकेडमिक्स है वो काफ़ी मैटर करते हैं,
बट बियॉन्ड दैट देर आर मेनी अदर थिंग दैट ऑल्सो मैटर. तो जो भी एंटिटी है, वेदर इट इज अ study abroad college, foreign universities, or maybe it is any company, what they see in the candidate is 360 degree or well-rounded, you know. So what kind of value this particular candidate is bringing to their organization, and that matters. So how to start this? The first thing I will say, your academic. Be sincere when you are doing your academic. जैसे होता है ना, चलो अरे बीबीए कर रहे हैं मार्केटिंग में, घूम आते हैं ना लेक्चर में, क्या बैठना है. सो दिस एटीट्यूड यू हैव टू चेंज. नाउ हाउ गुड यू नीड टू बी. सो लेट्स सी दैट आपका सीजीपीए है 8 के ऊपर, it is decent. 9 above is outstanding, definitely. Second thing I would say that, as I said for myself also, that I have completed few certifications. So if you are targeting a particular job role, you need to understand what kind of certification or the technical knowledge that you are going to need. Say for example, data analytics में आप जा रहे हो तो आपको पाइथन चाहिए, राइट. आपको पावर बीआई चाहिए. जैसे मैंने अभी जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस, क्रेडिट एनालिसिस में थी, उसके लिए आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग चाहिए, इक्विटी रिसर्च चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चाहिए. So definitely this kind of certification you have to do, because that is the only way you can increase your knowledge. Third thing I would say, start working, whether it is 2 month internship or 3 months internship. ऐसे भी होता है कि सबसे पहले ना हमें इंटर्नशिप हमारे रेलेवेंट फील्ड में कभी कभी मिलती नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल 2 महीने के लिए आपको कहाँ सिखाने की इंटर्नशिप मिल रही है, पर वो इंटर्नशिप में आप कौन सा स्किल एक्वायर कर रहे हो, वो सबसे बड़ी बात है. जैसे अगर मैं सिखा रही हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, अपने नोट्स बना रही हूँ, तो मेरा पब्लिक स्पीकिंग स्किल डेवलप हो रहा है. सो आई वुड एडवाइज द पीपल एटलीस्ट गो फॉर एट दिस स्टेज, बिकॉज मेरी स्टेज पे एक इंटर्नशिप मेरे लिए काफी था. गो फॉर 3 to 4 इंटर्नशिप, also the relevant ones. Go to the startups, not like a big company to start with, because that will give you the overall perspective how that industry works from start to end. और वो जो स्किल बिल्ड होगा ना, वो आप अपने रेज्यूमे में कीवर्ड में आप लिख सकते हो. सो दिस इज मस्ट. एंड देन सॉफ्ट स्किल्स तो है. अभी जो सॉफ्ट स्किल अभी जो ऐड हो रहा है वो है डिजिटल मार्केटिंग. यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट योर रेज्यूमे, और हाउ यू प्रेजेंट द वर्ल्ड who you are and what is your identity. तो आपका एक यूएसपी तो होना चाहिए. तो डिजिटल मार्केटिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, ये सॉफ्ट स्किल्स हो गए. और सबसे बड़ी बात जिससे मुझे भी फायदा हुआ, तो वो है हाउ टू बिल्ड अ लिंक्डइन प्रोफाइल. तो मुझे लगता है लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. आई टेल यू द स्टोरी ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट, जिसने बीटेक हुआ, वो ग्रेजुएट, वेरी नाइस गुड यूनिवर्सिटी फ्रॉम पुणे, एंड he got a call from German this company for a job. और उसने क्या किया था, 3 से 4 उसने इंटर्नशिप की है, उसमें उसने स्किल्स बिल्ड किए, वो अच्छे से लिंक्डइन पे ऑप्टिमाइज करके उसने डाला. तो थ्रू दैट प्रोफाइल ही इज नाउ गॉट इंटरव्यू कॉल. सो डेफिनेटली लिंक्डइन प्रोफाइल इज मस्ट, एंड यू शुड लर्न हाउ टू मेक इट इफेक्टिव. एंड देन द रेज्यूमे राइटिंग तो 1 पेजर है, सिंपल है. आजकल एटीएस आ गया है, तो एटीएस कंप्लायंट होना चाहिए. ये क्या है इट इज अ एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. सो फॉर अ पर्टिकुलर जॉब रोल क्या होता है ना, कीवर्ड्स होते हैं. अगर वो कीवर्ड आपके रेज्यूमे में है तो ही वो ट्रैक होता है, और आपके लिए इंटरव्यू कॉल आता है. सो यू हैव टू लर्न दैट ऑल्सो, बिकॉज एज अ टेक्नोलॉजी एंड न्यू गैजेट्स आर कमिंग, न्यू सॉफ्टवेयर आर कमिंग, you have to learn them, otherwise how you will optimize and use it for your own benefit. तो ये तो आपका जॉब के लिए इतना सारा प्रोफाइल बिल्डिंग हो गया. अगर यूनिवर्सिटीज ऑफ अब्रॉड है तो वो अलग का प्रोफाइल बिल्डिंग होता है. तो जैसे कि मतलब क्या वो लोग प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी तो नंबर है बट बाकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो आपका रिजेक्शन आ जाएगा क्या? या रिजेक्ट तो होता है सर, बिकॉज हर एक प्रोफाइल में ना एक डेप्थ और रेलेवेंस चाहिए. एवरी यूनिवर्सिटी लोग मतलब उनका जो डिफर होता है, हर एक का डेप्थ क्या है और रेलेवेंस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग फॉर ए टॉप यूनिवर्सिटी, हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी, सो एज आई जस्ट सेड अर्लियर कि 360 डिग्री जो होता है आपका प्रोफाइल वो होना चाहिए. सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? तो ये जो सारी बातें हैं हमारे पास, इसमें ऐड कर रही हूँ कि जैसे आपको पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है, बिकॉज आजकल कोई भी यूनिवर्सिटी पर्सनल स्टेटमेंट आपका रीड करती है, एंड एवरीबडी नोज दिस. तो ये जो पर्सनल स्टेटमेंट है ना, इसमें आपको क्या लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आजकल क्या होता है ना, सब एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहे हैं. अच्छा. हाँ, तो मैं 10 जगह पे जा रही हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर में,
ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, एंड आई एम जस्ट लिस्टिंग इन माई पर्सनल स्टेटमेंट, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, दैट वोंट मैटर. ओके. सो व्हाट विल मैटर, दोज 2 to 3 एक्टिविटीज कि जिसका जो एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ पे उसका इम्पैक्ट है, या दूसरों की लाइफ पे आपने कुछ इम्पैक्ट किया है. आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे ड्यूरिंग कॉलेज ईयर किसी ने कोडिंग का ऐप लिखा, ओके, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल सो दैट दे कैन रीड द बुक, सो समथिंग लाइक दैट. और आपने कुछ ऐसे वॉलंटरी कम्युनिटी के लिए कुछ काम किया है जिसमें आपने प्लास्टिक बैग रिडक्शन किया है, और बहुत सारा 1 साल से आप कर रहे हो. तो ये सारी चीजें ना, इट विल ऐड टू योर पर्सनल स्टेटमेंट, एंड इट विल define your individuality. Your personal statement will stand out when you share and align that interest with your interest and what you want to, what is future aspiration is there. तो ये सारा व्यू स्टोरी जो है वो हमें क्या करना है, व्यू करना पड़ता है अपने पर्सनल स्टेटमेंट में. तो ये एसओपी में हो जाता है. SOP being the हाँ statement of हाँ, purpose. पर्सनल स्टेटमेंट, यस. Okay. तो मैम ऐसा कुछ है क्या कि यूएस वाली यूनिवर्सिटीज या यूके वाली यूनिवर्सिटी जो है वो सोशल वर्क को ज्यादा वैल्यू देती हैं, या जर्मनी है वो स्पोर्ट्स को ज्यादा वैल्यू देती है? आर देयर एनी ट्रेंड्स ऑफ दिस सॉर्ट्स दैट यू हैव सीन? आई कैन टॉक अबाउट यूएस Hmm. स्पेसिफिकली. अभी यूएस में क्या होता है कि आप जो पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहे हो, इट नीड्स टू बी क्रिएटिव. मतलब आप सिर्फ लिस्ट नहीं कर सकते, जैसे मैंने अभी कहा. जैसे अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है यूएस के लिए, तो सबसे पहले तो उसके एकेडमिक देखे जाते हैं. 9 एंड अबव है तो गुड टू गो. तो पहले तो उसका वो इवैल्यूएशन होगा प्रोफाइल का. सेकंड होता है कि उसने सारे टेस्ट लिए हैं कि नहीं, जैसे जीआरई हो गया, जीमैट, जो अदर कंट्रीज में नहीं है, राइट. तो टोफेल हो गया, टोफेल है बिकॉज इट इज अ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो उसके स्कोर देखे जाएंगे. और फिर सबसे बड़ी बात होगी वो पर्सनल इंटरेस्ट. तो जो भी एक्टिविटी आप उसमें लिख रहे हैं, हाउ क्रिएटिवली यू आर राइटिंग एंड हाउ इट इज अलाइनिंग टू योर पैशन एंड इंटरेस्ट, तो ये बहुत देखा जाता है इसमें, जो यूके में नहीं देखा जाता. बिकॉज यूके में क्या होता है, यूके में वो देखेंगे कि आप ये कोर्स के लिए कितने फिट है. अच्छा. हाँ, तो उनके लिए ना सब्जेक्ट अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें आपका क्यों इंटरेस्ट है, आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो, उसका कंटेंट और वो सब्जेक्ट कितना अलाइन है, एंड प्लस आपने कौन सा कॉलेज चूज किया यूके का, तो वाई यू आर चूजिंग दैट कॉलेज. सो दे आर वेरी स्पेसिफिक थर्ड कि ये सारी चीजें आपके पर्सनल एप्लीकेशन या एसओपी में चाहिए. बट यूएस इज लिटिल बिट डिफरेंट इन दिस सिनेरियो. अंडरस्टूड. तो अच्छा, हाँ, तो मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफाइल बिल्डिंग, Yeah. तो मेरे को इतनी सारी चीजें करनी है, बट उसके साथ साथ मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि मैं जहाँ अप्लाई कर रहा हूँ करेक्ट. वहां पे किन चीजों का इम्पैक्ट कम रहेगा, या So what admission committee looks into the, What मतलब वो admission? जैसे यूएस की एडमिशन कमेटी देखेगी 360 डिग्री अप्रोच क्या है, क्या वैल्यू है स्टूडेंट का. बट यूके की यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन कमेटी है वो देखेगी वेदर ही इज फिट फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स. तो उनका जो अप्रोच है, तो वो डेफिनेटली टोटली थोड़ा सा अलग है यूएस से. अलग Yeah. रहता है इन लोग से. So ma'am, you are a career coach, and now that I have this opportunity that I'm sitting next to you, it would be wrong of me if I didn't ask you this question. Yes, sir. कि 2020 के careers अलग थे, 2030 में क्या होगा ये हमको पता नहीं. So what are some of the great career options in 2025? Okay. So I would like to take a reference here. अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक रिपोर्ट पब्लिश किया है दैट फ्यूचर जॉब्स 2025. सो अकॉर्डिंग टू दैट ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है. तो सबसे पहले जो अभी ट्रेंडिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. तो इसमें कोर्सेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में एंड डेटा साइंस में. नाउ व्हाई एवरीबडी नोज व्हाई, बिकॉज नाउ ईच इंडस्ट्री, आप हेल्थ केयर ले लो, फाइनेंस ले लो, मैन्युफैक्चरिंग है, ई कॉमर्स है, एवरीवेयर एआई इज गोइंग टू कम and that is why it is trending. तो it's like whether it is robotics, predictive analysis है, या autonomous vehicle हो गया, so everywhere it is going to affect. Second, it is healthcare and biomedical sciences and engineering. तो ये जो सेक्टर है कि जहाँ वैक्सीन कंट्रोल है, या पर्सनलाइज मेडिसिन में एडवांसमेंट हुई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में एडवांसमेंट चल रही है. So this is again the second I feel that most demanding career. तो उसके लिए भी whatever course है, जैसे बायोमेडिकल साइंसेस है, बायोमेडिकल इंजीनियर है, एंड हेल्थ
से रिलेटेड जो इंफॉर्मेटिक्स वो है, इसमें ज़्यादा डिमांड रहेगा. थर्ड इज डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी, सो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, बिकॉज नेट जीरो कार्बन गोल जो है बाय ऑल द गवर्नमेंट अक्रॉस द ग्लोब, एंड प्लस जो इफेक्टिवनेस और ऑप्टिमाइजेशन जो होने वाला है विंड, सोलर एंड वाटर एंड पावर का, तो इसकी वजह से जो भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, environmental sciences, renewable energy engineering, so all this and sustainability or sustainable even urban planning. So these courses will definitely in demand in this sector. The fourth, definitely cyber security and ethical hacking, because whether it is a startup or multinational, everybody is looking for robust security thing, digital security. And the last one is, I feel that it is digital marketing, because performance marketing है, content writing है, या SEO specialist है, तो ये एक करियर है जो सबको लगने वाला है, स्टार्टअप को भी और मल्टीनेशनल्स को भी, क्योंकि सबको है कस्टमर एंगेजमेंट, कस्टमर रीच बढ़ाना है, धंधा तो सबको धंधा ही करना सबको है. करना है. तो डेफिनेटली these 5 careers will be in boom now and I think next 5 to 10 years. And there are many others are also there, but to start with. टू स्टार्ट विद. हाँ. तो मैम बहुत सारे करियर ऑप्शंस तो हमेशा हमारे पास में रहेंगे. मैं थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक आपसे पूछना Okay. चाहूंगा Sure. कि जैसे हम लोग अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो इसके लिए क्या आप मुझे कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज बता पाएंगी, या कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे कि ये पढ़ाया जाता है, Right. ताकि मैं उनको, तब मेरे को पता है हाँ AI आई एम कन्विंस्ड दिस इज द Right. फील्ड दैट आई वांट टू स्टडी. Right. बट अगर मैं जाके देखना चाहूँ कि अच्छा कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स होता है, वो MS की डिग्री होती है या कोई, मेरे को पता भी नहीं और क्या क्या डिग्रीज होती हैं, कि वो जर्मनी के अंदर कोई कॉलेज अच्छा है. Correct. कैन यू गिव मी सम नेम्स दैट कैन हेल्प मी? It is very difficult question to answer, but I'll try. Okay, so let's take a first career. जैसे हमने कहा कि AI बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है अभी. USA is a very good country or option for this. So all the big universities like MIT है, और बहुत सारी है जो आप देख सकते हो उसमें. Second, I would say in machine learning. So University of Cambridge है UK की. फिर ETH है Zurich, that is from Switzerland. ETH Zurich, ओके. तो फ्रॉम स्विट्जरलैंड, तो वो एक है. तो इसमें ये कोर्स है. फिर थर्ड में बोलूँ तो इट इज मास्टर्स इन डेटा साइंस एंड AI, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो इसके लिए NQU है सिंगापुर की, या कनाडा की है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. सो दीज आर बेस्ट ऑप्शंस, बट देयर आर मेनी अदर decent and high ranking and good universities. These are just to give you some glimpse of it. And along with that, I would like to mention, so when we look at the profile, so there are many things we have to check before we before we apply for any student. The first most important thing कि mathematics का जो foundation है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोग्रामिंग का है वो अच्छा होना चाहिए, और अदर रिलेटेड थिंग जो AI और कोर्स कंटेंट में होगा. देन अगेन स्टूडेंट नीड्स टू सिलेक्ट कि रिसर्च ओरिएंटेड पाथ में हो जाना चाहिए, कि इंडस्ट्री एप्लीकेशन पार्ट में हो जाना चाहते हैं. सो वेन एवर दे सिलेक्ट एनी यूनिवर्सिटी फॉर AI, दे हैव टू सी कि क्या ऑफरिंग आ रही है, मतलब रिसर्च के जो फैसिलिटेशन है या इंडस्ट्री जो कनेक्शन है दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के, वो कैसे है, प्लस कंट्री वाइज क्या बेनिफिट्स उनको मिलेगा इफ दे आर गोइंग टू पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. सो दीज आर जस्ट नेम ऑफ फ्यू, बट देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज व्हिच आर डूइंग वेरी गुड इन AI. और बियॉन्ड बॉर्डर्स में हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाएँ, जितनी सही से सही नॉलेज दे पाएँ, वो हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें. I'd like to thank Dr. Padruja for coming to our show, telling our students, telling our viewers about the various career options that exist. आप करियर्स को कैसे स्विच कर सकते हैं, आप कैसे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा या नहीं भी लगा तो भी इस वीडियो को कम से कम लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, हम लोग आपके कमेंट्स को बहुत सीरियसली पढ़ते हैं, देखते हैं, और उसके बेसिस पे आने वाले एपिसोड्स में हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं. तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं स्टडी अब्रॉड के बारे में, करियर ऑप्शंस के बारे में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन को जरूर यूज करें, और उन सवालों का जवाब देखने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें. थैंक यू.